Hello class 12th. Let's continue our 10th chapter. Today this is the third part of chapter 10 and today we are going to discuss share market. It is also known as stock exchange. If we want to buy vegetables then we go to vegetables market. Okay. If we want to buy clothes then we go to cloth market. But if we want to buy shares or stocks or securities, then we will go to share market to buy stocks. So it is an institution which provides a platform for buying and selling of existing securities. See, existing securities means securities which are already issued in primary market. Okay, because stock exchange is secondary market. In it deals in securities which are already issued, मीन्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ में ये करता है डील. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे रिलेटेड केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती है चिल्ड्रन. सो प्लीज़ कीप इन माइंड दैट इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ अ सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटी के एक्सचेंज में ये फैसिलिटेट करता है, मीन्स सुविधा देता है. सिक्योरिटी जैसे शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, एक्सेट्रा. इनटू मनी एंड वाइस वर्सा. शेयर्स सिक्योरिटीज़ उसको या तो मनी में कन्वर्ट कर लो या मनी से शेयर्स बाय कर लो. ओके, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ है उनके लिए ये मार्केट प्रोवाइड करता है एंड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड इट कैन बी easily sold out there. It provides a ready and continuous market for the sale and purchase of securities. Second function is pricing of securities. It helps in constant valuation of securities. बिकॉज मार्केट में जब कोई भी चीज़ सेल होने जाती है तो वहाँ पे फिर डिमांड और सप्लाई से उसकी प्राइस डिसाइड होती है. ओके, डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन से प्राइस जो मार्केट रेट है उसकी डिसाइड होने लग जाती है. ओके, इफ़ डिमांड विल बी हायर then prices will increase. If demand will be lower then prices will decrease. Okay, it supply also will affect the price. So it helps in constant valuation of securities which provide instant information to both buyers and sellers, and thus it helps in pricing of securities which is based on forces of demand and supply. Next function is safety of transaction. The members of a stock exchange are well regulated who are required to work within the legal framework. This ensures safety of transaction. जो इसके members होते हैं, जो इसके stock exchange के जो brokers होते हैं वो well regulated होते हैं, मीन्स वो वहाँ से registered होते हैं. तो इसीलिए ट्रांजैक्शंस की भी सेफ्टी होती है, बिकॉज जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ में डीलिंग करने से पूरी सेफ्टी कस्टमर्स को होती है. नेक्स्ट फंक्शन इज इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म बाय विच सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स which leads to capital information and economic growth. Because एक जो कॉमन मैन है वो घर में रख के अपनी सेविंग को प्रोडक्टिव नहीं बना सकता. इफ़ ही deposit it into a bank, then also bank is giving limited interest. But if he wants to use the maximum and most productive investment, then he can invest it into a stock exchange through which he can buy securities of many companies. So this type of activities leads to capital formation and economic growth in the country.
The next function of stock exchange is it spreads in equity cult. In books it is given by the name of cult. Cult से बना है culture. ओके कल्ट से क्या बना है कल्चर मीन्स एक कल्चर जो है कंट्री में ये बनाता है. इट हेल्प्स इन एजुकेटिंग पीपल ओके अबाउट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ विच लीड्स टू स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर. स्टॉक एक्सचेंज है तो वो स्टॉक्स सिक्योरिटीज़ इनके बारे में एडवर्टाइजमेंट करेगा. Okay, it will educate people that how much beneficial their investment would be if they would invest in securities. तो जो स्टॉक एक्सचेंज है ये पब्लिक में अवेयरनेस और उनको एजुकेट करता है. तो इससे कंट्री में पूरा एक इक्विटी कल्चर स्प्रेड होता है. आज से शायद हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले इक्विटी कल्ट कंट्री में नहीं था. इनफैक्ट आज से बिफोर 50 ईयर और सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑल्सो वी हैड नॉट एनी इक्विटी कल्ट. इक्विटी कल्ट हमारी कंट्री में कब बढ़ा? आफ्टर 1991 द रिफॉर्म्स. ओके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन LPG के बाद में जो थोड़ा सा कंट्री में इक्विटी कल्ट ये इंक्रीज हुआ है. Okay, then it provide scope for speculation. Speculation means satta. Okay, so it provides scope within the provisions of law. satta वो नहीं जो illegal है, but provisions of law. Okay, law के provision के अंडर अगर speculation है, because stock exchange के जो फॉरवर्डेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो भी एक तरह से स्पेकुलेशन ही है. बट वो जो हैं वो लॉ से वो पास्ड होते हैं. ओके और वो लॉ के अंडर होते हैं. सो ये जो है स्पेकुलेशन के लिए एक स्कोप प्रोवाइड करता है इट इन अ रेस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल्ड मैनर. सो टू स्टॉक एक्सचेंजेस आर very famous and important stock exchange in India. First is BSE and second is NSE. BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange. These are famous stock exchanges in India. In fact, Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange in Asia. Now let us discuss trading procedure and settlement procedure, trading and settlement procedure in a stock exchange. Now I'm discussing directly from NCERT book, children, because this settlement procedure was not given very good in the notes which I shared to you. So let us discuss. Trading in securities is now executed through an online screen-based electronic trading system. Simply put, all buying and selling of shares and debentures are done through a computer terminal. Okay. There was a time when in the open outcry system, securities were bought and sold on the floor of the stock exchange. ये जो ओपन आउटक्राई सिस्टम था पहले, ये तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है. बट पहले जो ओपन आउटक्राई सिस्टम था मीन्स जो चिल्ला कर जो बोली लगाई जाती थी शेयर्स की और उस तरह से वो खरीदे और बेचे जाते थे. जो हाईएस्ट प्राइस पे बोली लगाता था उस शेयर्स उसके नाम पे हो जाते थे. ठीक है, तो उनकी एक तरह से बिडिंग टाइप से होती थी. बट जो ऑक्शन सिस्टम जो था, डील्स वर स्ट्रक अमोंग ब्रोकर्स, prices were shouted out and the shares sold to the highest bidder. However, now almost all exchanges have gone electronic and trading is done in the broker's office through a computer terminal. A stock exchange has its main computer system with many terminals spread across the country. Trading in securities is done through brokers who are members of the stock exchange. Trading has shifted from the stock market floor to brokers office. पहले तो स्टॉक मार्केट के फ्लोर पे ही होते थे. ओके, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ही होते थे बिकॉज ये जो बॉम्बे में ही जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था मेन, तो ठीक है NSE भी बहुत बाद में वो स्टार्ट हुआ. तो
जो यहाँ पे है तो वो स्टॉक मार्केट में ही वो ट्रांजेक्शन्स हो पाते थे, बट अब जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं तो वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से वो ट्रांजेक्शन हो सकते हैं. Every broker has to have access to a computer terminal that is connected to the main stock exchange. In this screen-based trading, a member logs on to the site and any information about the share, company or member, etc. he wishes to buy or sell, and the price is fed into the computer. जिस भी प्राइस पे उसको बाय करना होता है, जिस भी प्राइस पे सेल करना होता है, वो कंप्यूटर में फीड कर दी जाती है. द सॉफ्टवेयर इज सो डिजाइंड दैट द ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन अ मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड फ्रॉम अ काउंटर पार्टी. ठीक है, मैचिंग ऑर्डर, सपोज एक शेयर जो है वो अगर कोई एक कस्टमर है वो उसका मार्केट प्राइस 250 रुपीज़ पर शेयर है. ओके, तो जहाँ पे वो सेल करना चाहता है 250 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, और उसके पास 2000 शेयर्स हैं, बट अब 250 रुपीज़ में उनको कोई ना कोई बायर भी तो मिलना चाहिए. ठीक है, तो जहाँ पे मैच होगा वो ट्रांजेक्शन, ओके, फ्रॉम अनदर पार्टी, द ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है, ट्रांजेक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन मैचिंग ऑर्डर इज फाउंड फ्रॉम अ काउंटर पार्टी. The whole transaction is carried on the computer screen with both the parties being able to see the prices of all shares going up and down at all times during the time that business is transacted and during business hours of stock exchange. तो ये जो शेयर्स की जो प्राइसेस है ये हर समय जो बायर्स और सेलर्स हैं वो उनको स्क्रीन पे देख सकते हैं. द कंप्यूटर इन द ब्रोकर्स ऑफिस इज कॉन्स्टेंटली मैचिंग द ऑर्डर्स एट द बेस्ट बिड एंड ऑफर प्राइस. ओके, वो कंटिन्यूसली जो बेस्ट बिड होती है, ये जो ऑफर प्राइस होती है, वो उस पर कंटिन्यूसली वो मैच करता है. एक्चुअली मैच कौन करता है? कंप्यूटर मैच करता है. ब्रोकर तो केवल वो उसमें फीड करता है और वो जो ट्रांजेक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है. ओके, those that are not matched remain on the screen and are open for future matching during the day. ठीक है, जो जिस प्राइस पे बिड किया, सपोज अगर उसके लिए कोई बायर नहीं है रेडी, देन दैट ऑफर विल बी ओपन फॉर द होल डे on the screen. Now it has certain advantages. This question also can be asked in 3 markers. Electronic trading system ensures transparency as it allows participants to see the prices of all securities in the market. ठीक है, ये transparency provide करता है while business is being transacted during real time. Then it increases efficiency of information being passed on, thus helping in fixing prices efficiently. The computer screen display information on prices and also capital market developments that influence share prices. Capital market के developments जो भी हैं, suppose अगर गवर्नमेंट का कोई लॉ ऐसा आ गया जैसे शेयर प्राइसेस अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो सारे जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है. जो भी न्यूज़ में वो चलता रहता है कंटिन्यूसली, तो उससे जो प्राइसेस है वो बहुत ही एफिशिएंटली वो फिक्स होती हैं. इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस सिंस देयर इज रिडक्शन इन टाइम, कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर. तो ये उसको भी रिड्यूस करता है, एरर को, रिस्क को और टाइम को, और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है. Then people from all over the country and even abroad who wish to participate in the stock market can buy or sell securities through brokers or members without knowing each other, because broker is there in the between. Okay, in both the transaction broker is there, so investor may trust the broker, okay, whether they know the another party or do not know, it doesn't matter.
That is, they can sit in broker's office, log on to the computer at the same time and buy or sell securities. This system has enabled a large number of participants to trade with each other, thereby improving the liquidity of the market. जब बहुत ज़्यादा लोग शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाती है. अगर किसी भी प्रोडक्ट के लिए अगर कोई मान लो सेलर बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अगर बायर नहीं है तो मीन्स वो जो सेलर ने बनाकर वो रख दी तो वो गुड्स जो वो प्रोडक्ट है उसमें मनी ब्लॉक हो गई, उसमें लिक्विडिटी नहीं हुई. बट अगर बायर्स रेडी हैं उसके लिए तो उसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी. देन नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस online trading in securities is a single trading platform has been provided as business is transacted at the same time in all the trading centers. Thus, all the trading centers spread all over the country have been brought into one trading platform. ठीक है, वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जो सारे जो ट्रेडिंग सेंटर हैं वो आ गए हैं. ट्रेडिंग सेंटर तो कौन सा हुआ, जो कंप्यूटर टर्मिनल हैं. सपोज़ आज हमारी सिटी में जैसे वैशाली नगर में जो मित्तल शेयर्स जो शेयर शॉपी है, ठीक है, तो वो एक ट्रेडिंग सेंटर हुआ. ओके, बट दे ऑल आर कनेक्टेड टू वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्टॉक एक्सचेंज. ओके, और दे आर कनेक्टेड थ्रू देयर कंप्यूटर टर्मिनल्स ओनली. Now, screen-based trading or online trading is the only way in which you can buy or sell shares. ठीक है, बाकी चीज़ें हम और कहीं से खरीद सकते हैं, बट जो शेयर्स अगर हमें बाय और सेल करना है तो वो केवल और केवल ऑनलाइन ट्रेडिंग से ही वो पॉसिबल है. शेयर्स कैन बी हेल्ड आइदर इन फिजिकल फॉर्म और एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री. फिजिकल फॉर्म में जैसे अगर हम उस शेयर सर्टिफिकेट को हम प्रिंट करवा लेते हैं तो वो फिज़िकल फॉर्म हो गया. बट अगर वो केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो वो क्या है, वो पूरा वो कहा जाएगा कि वो डीमेट अकाउंट में है. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो शेयर्स होते हैं वो डीमेट अकाउंट ही उन्हें होल्ड करता है. सो एंट्री फॉर्म ऑफ होल्डिंग and transferring shares can also be adopted. This electronic form is called dematerialized form, means demat form. Dematerialize का short form है demat. Dematerialize का मतलब होता है where material things are not important, means उनकी hard copy नहीं, उनकी soft copy या उनकी जो electronic copy है, okay, e-copy जो है वो भी acceptable है. Okay. Now, steps in trading and settlement procedure we will discuss in our next video. Till then, goodbye. Stay safe.